And yeah, that's, I don't have to balance it because one earns your living and the other, one gives food on your plate and the other gives food for your soul. So I think in that sense, I'm okay. I hope that answered your question, Sam. Yes, sir. Thank you. So do you want me to hum something? We'll keep it for a little later. Go ahead. Whatever you feel like. You're the boss. Okay, we'll just hold it for some time. Okay. I want to like share experiences from the Savas and the time, when I was in Goa. So when I was in Goa, I happened to reach around August of 2016, sorry, 2011, and at that time it's like an engineering college, right? So you'll have like all sorts of faculties there for all sorts of departments. It so happened that I got to know that there is a Savasi there in the campus, the name of Dr. Shalini Dikshit and Manisha Dikshit and Shalini Upadhyay. And my cousin, Dr. Nitin, he told me that, okay, you're going to Goa. That's so interesting because, there are two Baba lovers that are already there. And when I reached there, you won't believe it is, I mean, it is rare, right? If you have Baba lovers, I mean, they're spread across geographies, but I not only got to meet and interact and probably learn under these two Baba lovers, but there were seven Baba lovers in the campus. Can you believe it? Like AK campus, mein probably Baba ne seven Baba lovers basically. So for me, it was, I never felt I was out of place, or I always felt I was under his cocoon because I mean, please beat this. How can you have seven Baba lovers in one campus? I mean, she was there, sister there, their husband was there, उनका भाई भी थे, उसकी वाइफ भी थे, उनके बच्चे, so they all कुल मिला के there were seven Baba lovers, and such an awesome experience because uh, throughout my college, I think first, second, third year, all years, we used to have these satsangs at Shalini these places, Manisha these places, and we eventually started doing so many prathanas. We started doing on Sundays. We used to meet and we used to do bhajans. And also, when you are in a college, you have all sorts of people, you have all sorts of students. So it was also very difficult to, convince everyone to come, people to come. And people assumed it's a cult that, we are sort of doing things there. And in fact, एक time पे बहुत interesting हुआ था college में पूरा, somebody had put it up on social media and it had sort of gotten a little viral, that something is, these guys are doing some sort of puja and all. But then, we explained them what exactly it is. What do? We do bhajans, we do discourses, we discuss, and then we have a little bit of prasad and we leave. So it was overall in Goa also, I clearly remember that it was an amazing experience. It was just an out of the world experience to be able to have company of amazing people, and especially Baba lovers in a place like this. I mean, for Goa of all people, you can imagine Delhi, you can imagine Mumbai, you can imagine other places, but Goa of all places. So for me, it was like, I was in a cocoon, I was in a shell, protected throughout. And for me, that was the best part, I think. And yeah, so that was my experience about Goa. Sorry to interrupt, Rajat. Can we improve your sound? Because and also if you can speak a bit slowly and clearly, because we are not able to get you. वो जरा treble कम करिए, because there's too much of Okay. अभी better है? yes, it is. Okay. Okay. आप मुझे कभी भी इंटरप्ट करके यू कैन से, लाइक अगर आवाज नहीं आ रही तो। आई होप अभी तक मैंने जितना ही आधे घंटे बोला है कुछ भी सुनाई तो दिया है ना? अभी इतने बड़े सिंगर को इंटरप्ट करना नहीं, ऐसा नहीं है।
So yeah, so yeah, Sam uncle, that was about college. कुछ specific अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप यू वांट टू डिस्कस, बताइए आप. मुझे एक चीज पूछनी है. Hmm. Before I start on that, I would like to open the question to panel. Anybody wants to ask anything, please go ahead. Yeah, Rajat. Rajat. Go ahead, Archana. Hi. Hi, Rajat. Jai Baba. Jai Baba. How are you? I'm Okay. good. I wanted to ask you, you said you've composed songs as a child and all. So have you recently composed anything for Baba on Baba Yes. and sung it? Yeah, So yeah. that'd be really nice if you could sing it at a later stage in the program. Sure, sure. Okay, fine. Yeah. Towards the end, perhaps. अभी मैंने कुछ ही एक महीने पहले एक गाना लिखा. Okay. Thank you, Jai Baba. I think एक और question था. Sorry, Yeah, Rajat. Rajat. Jimmy uncle here. Hi, Jimmy What uncle, was Jai Baba. hi, what was the point? That was the turning point you got hooked to Meher Baba. Yeah, okay, very Any good such question. thing? Yeah, Any yeah. such There thing? have been many times, Jimmy uncle. Every time I think it's वो है ना, वो sling वाला होता है ना, sling और वो होता है तो उसको जितना भी stretch करो. नहीं, in fact I think sling नहीं, boomerang जो होता है वो अच्छा analogy हो. Boomerang होता है वो दूर जाता है फिर वापस आता है. So I think वो बहुत instances हुए हैं. एक तो जो मैंने पहली बार अपने बताया था, जो पहली बार जब मैं I went to Hyderabad in 2012. I think that instant, that moment I clearly remember. मैं अभी भी उसको describe नहीं कर पाता हूँ, but it was like वो homecoming वाला जो experience होता है ना, that experience that you have when you come home after a long time. वो experience आया था मुझे. That was one. Second thing was the Savas. So I think the Savas was really एक turning point था, because Savas में also it's a I mean psychologically also अगर आप देखें तो आप एक 7 days आप एक intense activity कर रहे हो. So psychologically definitely उसका एक impact तो आएगा ही. That is the reason why many people who go to Savas have their lives turned, because I mean it is natural. आप एक it's basically like you are being psychologically trained in that environment for like 6 to 7 days. So naturally उसका impact आएगा ही. And जब एक ऐसा time आता है जब when we are young, when we are in your 20s 22s वाले जो एज में होते हैं, सो बहुत ही वियर्ड होता है दिमाग, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ स्टफ टू डू, बट यू डोंट नो एग्जैक्टली. सो उस टाइम पे टू कम अंडर बाबा's fold, आई थिंक दैट वाज बहुत अच्छी एक चीज थी. बट सहवास में आई थिंक इट वाज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. एंड मैं अभी भी सबको बोलता हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी यंग लोग हैं वो सहवास जरूर जाएं, बिकॉज अपनी we are with our compatriots, we are with people of our own age. We have similar problems, we have similar joys, we have similar sorrows. हमारा सब कुछ एक जैसा ही है ऑलमोस्ट. तो उसके हिसाब से हम बॉन्ड भी उसी तरीके से कर पाएंगे. तो इसलिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे सहवास होते हैं. जैसे तो अमर तिथि itself is a very big सहवास. People are coming from different directions and from different places. But the thing is that जब हम सहवास में जाते हैं, the young adult सहवास, basically, if anybody do not understand, it is the मेहराबाद young adult सहवास जो हर साल जून में होता है. उसमें जब हम जाते हैं तो जब पार्टिसिपेट करते हैं, जो एनर्जी होती है, जो एक्टिविटीज होती है, वो एक बहुत बड़ा ड्राइवर है. आई थिंक आई ऑलवेज क्रेडिट माय फर्स्ट सहवास 2013 that it brought me close. एंड उसके बाद आई थिंक बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बहुत पर्सनल भी हैं, बहुत पर्सनल भी हैं. एक तो मैं इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ. आई थिंक सैम अंकल के साथ एक बार हमारी चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनको बोला था, उन्होंने मुझसे पूछा था अबाउट रियलिटी शोज. सो there was a reality show that I participated in 2016. It is called The Voice. It used to come, अभी शायद वो आजकल नहीं आता है. तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था कि देयर आर
four judges, four musicians. They sit facing their back towards you, and you sing. And it's a 90-second thing that you have to sing. So 90 second में अगर judges आपको पसंद करते हैं, they turn their chair, then you go forward in the next round. Okay. And this came to India in 2006. ये पहली बार इंडिया में 2016 में ये फॉर्मेट आया था. जैसे आप सब लोग इंडियन आइडल सब लोग जानते हैं, सारे गाँव का सब लोग जानते हैं. Indian Idol came way back in 2004. Indian Idol again is a adaptation from American Idol, right? So American Idol happened in 90s. Then उसका एक format इंडिया में आया, which is Indian Idol. 2004 में पहला सीजन था. Similarly, ऐसे बहुत सारे reality shows इंडिया में आए. उसमें से एक था The Voice. And वो US में and ऑस्ट्रेलिया में और जगह पे भी पहले से चल रहा था. इंडिया में वो 2016 में आया and happened to be part of it. But the interesting thing is, and I think ऐसे बहुत सारे incidents हैं. I don't have to sort of stress on Baba's divinity at any point in time. But this is one of the million incidents that has happened with me, जो मुझे अभी याद आ रहा था सुना रहा. Way back in 2013 and 14 or 12 and 13, I don't remember, जब मैं कॉलेज में था. So कॉलेज में कैसे क्या होता था, हम लोग के like rooms में TV and all नहीं होता था. There was no entertainment in the rooms, but we used to have a common room where we used to gather and sometimes have a meals, or sometimes just play. We used to have like a TT table, we used to have a TV and all of that. तो वहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रीगेट करते थे. तो संडेज आई क्लियरली रिमेम्बर, संडेज को यूजुअली क्या होता है कि अभी जो लड़कों के हॉस्टल पे तो सब लोग सो रहे होते हैं. संडेज इज द डे टू स्लीप. Nobody gets up. Everyone gets up in the morning to have chole bhature and then everyone sleeps. So I remember morning में 10-11 बजे के आसपास there's this show that used to come, The Voice. And वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा था. उस फॉर्मेट में क्या होता था कि a singer used to come for 90 seconds and the judges used to sit their backs faced towards the contestant, and the contestant used to sing for 90 seconds. And जब वो अगर वो 90 seconds में अगर उनको पसंद आता था judges को, they would press the buzzer and they would turn, the chairs would turn and they would get to see the person, and hence that person would go to the rounds आगे के. And I love that show because it was very novel, it was very interesting. And ये 2012-13 में आता था, and I had two things in my mind. First thing was that first of all, this show is coming to India. Okay. It will come to India in the next 2 to 3 years. Somebody will buy the format, or this format itself will come to India. But this show is going to come to India. And second thing I just wished was, I want to go on that stage. I want to see myself on that stage. So I used to say this in my mind, then I completely forgot about it. And so this happened. I graduated from school, from college, and I came to Mumbai. And I was working here. I was working with a startup which is into payments. And it so happened that this was November of 2006. I was going home from my office. I was just in Mira Road at that time. So मैं घर जा रहा था, and मैं जैसे घर पहुंचा, I got a call from my friend Kanchan. Janice, not our Kanchan, but my Kanchan, from my childhood friend from Lucknow. She is a singer, and उसने मुझे फोन किया कि where are you? मैंने कहा मैं घर पे हूँ. उसने कहा कि अभी तुरंत within 2 minutes you send a video of yours to me. ऐसे कैसा वीडियो भाई? कहते नहीं, बस एक just record a song, कुछ भी रिकॉर्ड करके just 2 minutes, just send a sample to me immediately. तो ठीक है, I send it to her. 5 मिनट बाद मुझे उसका कॉल आता है कि वेयर आर यू. आई सेड मैं घर पे हूँ. कहते नहीं अभी कैन यू कम टू गोरेगांव इन हाफ एन आवर. मैंने कहा एक तो मैं मीरा रोड में, आई जस्ट कम फ्रॉम ऑफिस, इट इज 10:30 इन द नाइट. तुम उम्मीद करती हो कि मैं अभी रात में गोरेगांव. कहते नहीं यू हैव टू कम राइट नाउ इन हाफ एन आवर. आई सेड व्हाट हैपेंड. कहते नहीं यू हैव टू कम, जस्ट रीच फिल्म सिटी राइट नाउ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. लाइक ओके. बीच बीच में SMS कर रही थी, व्हाट्सएप कर रही थी, मैं इस पे बात हो रही थी. आई रीच फिल्म सिटी. मैं उससे बोला, मैंने कहा हुआ, तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे द वॉइस के ऑडिशन हो, द वॉइस इंडिया. तो मुझे उसमें कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ. उससे बोला द वॉइस इंडिया के ऑडिशन हो रहे हैं, एंड राइट नाउ दे हैव 100 पीपल इन द फर्स्ट राउंड एंड दे आर फॉलोइंग 3 शॉट. तो जो प्रोडक्शन हेड था उसने मुझे, हम लोग का प्रोड्यूसर को बोला कि आपके जानने वाले में कोई है कि नहीं जो अभी आ सकते हैं.
तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया. I was like, wow, that is interesting. So if you guys know how reality shows operate in India, जो लंबे लंबे क्यूज दिखाते हैं आपको ऑडिशन, वैसे ही होता है, बट समटाइम्स यू आल्सो गेट बैकडोर इट. सो आई वाज लाइक एक्साइटेड कि चलो मुझे एंट्री मिल गई है. एंड बाय द वे, आई होप माय ऑडियो इज क्लियर, यू गाइस कैन हियर ना प्रॉपर्ली. आपका आवाज आ रही है? हाँ, मगर बीच बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है. अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं और पास आ जाऊँ. सो देन उसके बाद ये हुआ कि आई स्पोक विद हर, एंड उसने बोला कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, यू मीट दिस पर्सन. एंड आई जस्ट गेव माय ऑडिशन, एंड लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट सेलेक्टेड. एंड उतने जितने जो बच्चे सिलेक्टेड थे 98 99, तो वो पिछले एक महीने से ट्रेन कर रहे थे, एटलीस्ट 15-20 दिन से ट्रेन कर रहे थे. आई जस्ट हैपन टू हैव अ हेलीकॉप्टर लैंड. तो मुझे 2 दिन पहले, एंड मुझे उसी समय मोमेंट पे सॉन्ग सेलेक्ट करना था. जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड मेरा शूट का दिन आ गया, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. आई वाज लाइक वाओ, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी. मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा प्रोसेस बाईपास करने को मिला. बट इट वाज अ मिक्स फीलिंग, बिकॉज मुझे बहुत सारे एडवांटेज नहीं मिला बाकी लोगों की तरह ट्रेन करने को. इट वाज अ वेरी लास्ट मिनट थिंग. सो दैट हैपेंड. सैम अंकल एंड एवरीवन, यू वोंट बिलीव, आई वाज पीछे, मैं स्टेज के पीछे था. सो दीज आर बिग सेट्स, बहुत बड़े बड़े सेट होते हैं ये. एंड अगर आप सेट के पीछे देखो तो पूरा तार और मशीन्स का बहुत बड़ा अंबार होता है. मतलब यू कांट इवन वॉक, इट इज सो बैड. जस्ट वायर्स वायर्स एंड सब कुछ हर जगह, बस पावर एंड लाइट सब होती है. आई वाज जस्ट मेकिंग माय वे अराउंड दैट. एंड मेरा टर्न आने वाला था, वहां पे देखा मैंने, इट वाज पिच ब्लैक बिहाइंड द स्टेज. वहां पे एक जगह पे, छोटी जगह पे, एक शिव जी की छोटी सी फोटो लगी हुई थी, शिव एंड पार्वती की एंड गणेश. एंड आई जस्ट हैपेंड टू रिमेम्बर, उस जैसे वो फोटो को देखा, मेरे दिमाग में थॉट आया कि शायद आई वोंट बी सिलेक्टेड. I just had this thought, I won't be selected. I was very pumped up, I was all excited. I will not be selected. And उसी समय पे I just had this feeling that I'll break down, like I'll start crying. तो एकदम से वो एक overwhelming वाली feeling आती है. And immediately I was transported back to 2-3 years back. उस समय वो मोमेंट पे जब मैं हॉस्टल में टीवी के सामने बैठा रहता था कि I want to see myself on the stage. उसी समय वो बात मुझे याद आई कि I'm actually going on the stage. And but my journey is still the stage only. And that is what happened. I was so excited, but I couldn't give my best on that day. And I just happened to walk out of it. When I came back home, of course, you are a little sad that, even though it was it was such a random thing to happen, it comes a call and I happened to go. But I was still sad. But, at that moment, I remembered, Money Auntie की story है, right? कि जब वो और फ्रेंड की जो फ्रेंड थी, वो लोग मेरा बाद में खेल रहे थे. Baba was in a very happy mood, and at that time Baba said, addressed both of them, said, you know what, I'm in a very happy mood. अभी जो मांगना है मांगो, मैं अभी दूंगा. Then he asked for, said maybe my marriage should happen to a very rich Parsi businessman, a very handsome, beautiful man. So Baba said, okay, given. So actually, Frenny got married to a very nice, Parsi businessman, beautiful person, and she exactly got what she had asked for. On the other hand, Baba asked Mani that, what do you want? So Mani being Mani, she said, Baba, I want to live with you, or I want to be with you. And Baba was about to say, given. She said that forever. Hamesha. So Baba smiled, and then he gave her the gift of being with him forever. So the summary of this story is that whenever you ask from Baba, ask like a lawyer. That whatever you want to ask, whenever you want to ask God, ask like a lawyer. Because मैंने भी उस समय मांगा तो था ही, but I did not ask like a lawyer. All I asked from Baba was, I want to see myself on that stage. I saw myself on that stage. So yeah, so that was one very interesting incident that happened. ऐसे बहुत सारे हैं. So I hope Jimmy uncle, this was good. This one of those incidents, मतलब जैसे कनेक्शन तो हुआ ही,
मतलब कनेक्शन में कोई डाउट नहीं था, बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिससे वो डिविनिटी का एहसास जरूर हो Yeah, I'm happy. Happy. Go ahead. गया. Let's hear some songs. Come on. Let's hear Okay, some okay, songs. okay, okay. 1 minute, Rajat. I would like to. Yeah. Perhaps this was Baba's way of keeping you to sing just for him. It has Absolutely. it has happened before in the case of मधुसूदन को उस जमाने में रेडियो पे जाने का बहुत शौक था, you know, being a good singer and all that, but he couldn't make it. बाबा ने बोला तेरे को जाना है तो कोशिश कर, but and then Baba said, why don't you दुनिया को बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है, just be with me and sing for me. Perhaps I don't know, I mean, it may be so in your case also, I don't know. All Babas, he knows best. Right. So yeah. So apart from that, also by having uh, like many incidents. Again, one small one that I will share. 2004, I happened to participate again in a reality show. This was when I was a kid. I was a kiddo, and in that reality show, I got the opportunity to travel to Mumbai, and I was in class six at that time. And I traveled to Mumbai, and I was staying at the Centaur, which is the Tulip Star, and it was a very nice event. And I had come to Mumbai for the first time, so that was interesting. It was an interesting experience for me. And second was that we got to meet so many people from various places. But the icing of the cake was that there was a small incident that happened at that time, and that was that उसी समय पे Indian Idol had come to India, and I was in the hotel room and I was watching this show. Again, this is all related to the reality show bit, Sam Uncle. So this is exclusively for you, and also Baba's connection with this. So I was seeing Indian Idol. Again, it was an interesting show, and at that time, all these contestants, they had gotten immensely popular in the country, right? And they were being, received everywhere with lots of love and affection, and it was the first of its kind. So everyone was very excited about it throughout the country. And at that time, when I was looking at the screen, I saw one of the episodes and I saw one of the contestants. I again, in my mind, like an innocent boy, I just said, there'll be a time when I'll be sitting with these guys, with all of them, with all these contestants. And Abhi, right now, I'm seeing them. They're in the television. So for me, they are like celebrities and all of that. So there'll be a time I'll be sitting with them and it will be a very humbling experience in the sense that I won't even feel that I'm in their company. So this is what I said in 2004, and I just completely forgot about it. And comes 2016, 17, 18, and I'm in Mumbai, and I happen to be at a friend's place, Siddharth Verma's place, and we were just jamming. We had just started Jammers, Baba Jammers, the group, and we used to sing songs. So we just happened, we were at his place, and हम लोग कुछ गाने वाने गा रहे थे, and said that there's this guy who's coming and he's bringing his friend along. I was like, okay. And this person comes, and there walks in this girl who's part of one of the reality shows. She was part of the original Indian Idol series. And she sits there, and I didn't know that she's a Baba lover. And we started chatting, and ऐसा सब हुआ. And उसी moment पे उसने मुझे बोला, and सिद्धार्थ भैया बोलते कि this is Rajat, and he sings and all. And, thank you. And उसने बोला मुझे, that girl said that I want to learn Baba's art. So can you teach me Baba's art? So I said okay, and I started singing Adi Sacheta, and I was singing Baba's Aarti. And आरती के बीच में बिल्कुल सेकंड स्टैंजा पे या कहीं पे तो एकदम से मुझे स्ट्राइक हो कि आज से 10-15 साल पहले मैंने बाबा से ये चीज बोली थी. एक टाइम ऐसा आएगा मैं इनके साथ बैठा हूंगा और मुझे कुछ बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा.
So it was that moment. I mean, अभी मैं जब बोलता हूँ तो शायद I'm not able to explain the significance of it. But these are little moments. मतलब छोटे छोटे moments होते हैं जो शायद हमें उतना इफेक्ट भी ना करें, बट इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि मतलब एक जो छोटी सी चीज जो हमने बहुत साल पहले सोची थी, वो बाबा ने वो रियलाइज करवाई, बट इन अ डिफरेंट वे, बट इट वाज सो पावरफुल। तो बाबा की डिविनिटी एंड मेरा कनेक्शन टू दैट डिविनिटी, आई थिंक उस पे इतने इंसिडेंट्स हैं कि हम पूरी शाम बैठे रह सकते हैं, 2-3 घंटे हो सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करते रह सकते हैं। तो अब मैं आपको गाने सुनाता हूँ 2-3। सो फर्स्ट आई विल सिंग अ सॉन्ग that I just wrote few last 1 or 2 months back. Okay. Ji Sam uncle, you want to say something? I just want to remind you about Hari Mana. Yes, yes, yes. Thank you. तो मैंने ये जो सॉन्ग था ये लिखा था कुछ टाइम पहले, एंड सॉन्ग मैंने सोचा था कि आई वांटेड टू राइट इट एज अ एक छोटा बच्चा कैसे गाना गाता है, लाइक अ नर्सरी राइम, बट देन वो कुछ और ही मॉर्फ होके किसी और फॉर्म में ही हो गया। दिस सॉन्ग जस्ट टॉक्स अबाउट द लिटिल ब्यूटीज इन लाइफ, कि डिविनिटी हमको छोटी छोटी चीजों में कैसे हमको देखने को मिलती है। दम 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 दम। फूलों की खुशबू से महके चमन और महके नगरिया, गीतों के सरगम से झूमे गगन, गाएं भंवरे और तितलियां। फूलों की खुशबू से महके चमन और महके नगरिया, गीतों के सरगम से झूमे गगन, गाएं भंवरे और तितलियां। तारे चंगार सूरज पहाड़ और नदिया, जादू से जैसे समा तूने बांधा, कि इसके सिवा भी है कुछ और क्या। मेहर का है खेला, मेहर का है मेला, मेहर नाम धाम है, राम है श्याम है नाम। ओ मेहर का है खेला, मेहर का है मेला, मेहर नाम धाम है, राम है श्याम मेहरबान। तेरी प्रीत से मैं की सुबह है, प्रेम में भीगी शाम है। तेरी प्रीत से मैं की सुबह है, प्रेम में भीगी शाम है। कण कण में नाम मेहर है, हर मन में तेरी आस है। हो मन घबराए काहे, माया में रमे काहे, मन घबराए काहे, माया में रमे काहे। ऐसी फंसी मझधार मोरी नैया, मेहर मेहर गुण गाओ, मेहर धुन सुनाओ, दिन दिन रातें मेहर धुनी रमाओ। किसके सिवा भी है कुछ और क्या, मेहर का है
खेला मेहर का है मेला, मेहर नाम धाम है, राम है श्याम मेहरबान। मेहर का है खेला, मेहर का है मेला, मेहर नाम धाम है, राम है श्याम मेहरबान। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू। Thank you. अभी एक और मैं सॉन्ग, please, ये please. भी मेरी कॉम्पोजिशन है। I sang this, so I composed this during I think COVID, या कोविड के जस्ट बाद। एंड इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि आई वाज पर्सनल लाइफ में आई वाज गोइंग थ्रू फ्यू थिंग्स। सबका फेज आता है वो डाउन वाला, था आई वाज गोइंग थ्रू दैट डाउन वाला फेज, एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग दिस सॉन्ग। कि मैंने जस्ट इमेजिन किया कि बिकॉज इट वाज द टाइम व्हेन यू नो आई वाज गोइंग थ्रू टाइम्स व्हेन इट वाज, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही ग्लूमी टाइम होता है, तो कुछ ऐसा रंग और ये सब दिखता नहीं है हमें। तो मैं उस टाइम पे था, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट थॉट में मैं सोचा था कि बाबा अगर रंग बिरंगे कपड़ों में होंगे तो कैसे दिखेंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू फिल सम कलर इन माय लाइफ थ्रू एन इमेजरी। तो मैं ये सोचा था जब बाबा राजस्थान जब जाते होंगे तो वो वहाँ का राजस्थानी जो अटायर है बहुत कलरफुल है, बांधनी जो अटायर है उसमें बाबा कैसे लगेंगे। सो इसलिए मैंने सॉन्ग लिखा था। एंड देयर वाज अनदर स्टोरी जिसपे ये सॉन्ग बेस्ड था। सिद्धार्थ भैया की मम्मी, सिद्धार्थ की मम्मी मेहर आंटी ये सुनाती थी। इसमें बेसिकली देयर वाज दिस बाबा लवर जो बहुत प्रेम करती थी बाबा को, बट वो अपनी परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध जाके वो बाबा के दर्शन करती थी, उनका नाम स्मरण करती थी। तो बाबा इंस्ट्रक्टेड हर की आप अपने परिवार की आज्ञा लेके ही मेरे पास आएंगे, you should not disobey them. But she was too much in love with Baba, and it so happened things got so escalated कि Baba said कि आज के बाद से I will not give you darshan. You cannot even come to my savas or other meetings. And in fact तुम मेरा नाम भी नहीं ले सकते अपने मुंह से. So she would not say Baba, but she would actually say Sahib, Sahiba. So so she would ask her relatives and all जो भी बाबा के पास जाते थे कि मैं साहिब कैसे, you couldn't even take Baba's name. But that was a love for Baba, that despite Baba's scolding her, and she followed Baba's order. Imagine to not take Baba's name and not even go to his darshan, not even see his photograph, but remember about him. So that is a crazy, that's God's ways anyway. So उसी स्टोरी को मिला के एंड बाबाज राजस्थानी अटायर को मिला के मैंने एक सॉन्ग लिखा था। एंड मैंने जस्ट मेरा पेन रखा और बुक बंद की और मुझे कॉल आया। तो कॉल के साथ सिद्धार्थ भैया का था। तो जय बाबा वगैरह हुई, एंड मैंने ऐसे ही कैसा क्या कर रहे हो, मेरे को चिक्की बोलते तो क्या कर रहे हो चिक्की था, लाइक कुछ नहीं बस भैया बैठा हुआ था। तो इज लाइक ओके, मैंने कहा तो भैया बताइए कैसे फोन किया, कहते नो आई एम जस्ट एंटरिंग मेहराबाद, आई फेल्ट लाइक आई शुड कॉल यू। आई लाइक चलो मेरी प्रॉब्लम्स और मेरे सॉन्ग के थ्रू वो अटेंडेंस लग गई। बट व्हाट ही सेड वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। कहते अच्छा चिक्की आई हैव कॉल्ड यू, so basically, we are arranging a trip of trippers, of Baba lovers to Ajmer. So would you help? Would you join us? So the moment I heard Ajmer, I said कि okay, ये तो मतलब बिल्कुल synchronicity अपने extreme level पे चल रही है। I think Baba wanted to convey something to me. I think he is listening. I don't need not worry. It's whatever it is, it shall get over. Whatever it is, it shall pass. So this is another song that I wrote. It's called Sahib. मेरा साहिब मेरा मौला, मेरा साहिब मेरा मौला, मेरा साहिब मेरा साहिब मेरा मौला मेरा आका तू, मेरा साहिब मेरा मौला मेरा आका तू,
मेरा सब कुछ मेहरबान, मेरा राजा तू, मेरा साहिब, मेरा मौला, मेरा आका तू, मेरा साहिब, मेरा मौला, मेरा आका तू, मेरा सब कुछ मेहरबान, मेरा राजा तू, मेरा साहिब, मेरा मौला, मेरा आका तू, है सब नाम तेरे, तेरे नाम है सब, है सब नाम तेरे, तेरे नाम है सब, ओ रब दे बंदे लागे ना, रब से दूजा तू, मेरा साहिब, मेरा मौला, मेरा आका तू, मेरा साहिब, मेरा मौला, मेरा आका तू। केसरिया बालम आवो पधारो मारे देश, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, कमली कोट पहन लाल साफा डाले देश विदेश, घूमे रे साहिबा, कमली कोट पहन लाल साफा डाले देश विदेश, घूमे रे साहिबा, सूट बहन के राजा लेके चले सवारी, सूट पहन के राजा लेके चले सवारी, दरस दो मोए साहिबा, दरस दो मोरे साहिबा, दरस दो मोरे साहिबा, मोरे आंगन दवारे छाड़ो चप्पलें तुम अपनी, मोरे आंगन दवारे छाड़ो चप्पलें तुम अपनी, जब तुम आवो पहनाओ मोरे आरती उतारो, मेरा साहिब, मेरा मौला, मेरा आका तू, मेरा सब कुछ मेहमान, मेरा राजा तू, मेरा साहिब, मेरा मौला, मेरा आका तू, है सब नाम तेरे, तेरे नाम है सब, है सब नाम तेरे, तेरे नाम है सब, ओ रब दे बंदे लागे ना, रब से दूजा तू, मेरा साहिब, मेरा मौला, मेरा आका तू, मेरा आका तू, मेरा अवतार मेहर बाबा की जय। Hey Baba. And now Sam Uncle's. So Song इस सॉन्ग का जो स्टैंजा है, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट इज कि बाबा यूज्ड टू गो, विदेश जाते थे बाबा अपने टूर पे, वो सूट बूट पहन के जाते थे, somehow बाबा यूज्ड टू वेयर सूट बूट व्हेन ही यूज्ड टू गो टू विदेश, एंड so basically भक्त ये अरदास कर रहा है, what the disciple is saying that when you go to uh, when you go to the west, you wear this fancy suit and boots, but you know what, let's do one thing, you go, I'm not putting any condition on you, you go if you want to go, but do one thing, whenever you go, you leave your sandals at my place, you leave your chappals at my place, because what will happen is that is the last place that you will visit before you go to the west, and then that will be the first place that you visit when you come back. Then I'll do your aarti and you can carry on with your business. So this is a thought behind that, and I'll sing something that Sam uncle really wanted. रजत, तूने बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक का ट्योई ट्योई कुछ Is रखा? it coming a lot? हाँ जी. Is it coming a lot? Is it disturbing? Yes, it is in a way.
ओके, इज इट अभी भी? ना अभी नहीं है। अब नहीं आ रहा है। ओके, सॉरी, बिफोर यू स्टार्ट, या ये जो इज दिस अ तुकाराम्स अभंग की क्या? नहीं, मोस्ट लाइकली इट इज सम ट्रेडिशनल भजन ओनली। ये तुकाराम का आई एम नॉट रियली श्योर, आई कैन नॉट से इट विद अथॉरिटी, बट द थिंग इज कि आई हैव हर्ड इट, मेनी पीपल हैव sung it. I mean, we have the Baba version, but there's another version also of this. हरी मना तुम्ही, गोविंद मना तुम्ही, गोपाल मना नेह नारायणा. हरी मना तुम्ही, गोविंद मना तुम्ही, गोपाल मना मेह नारायणा. हरी मना तुम्ही, गोविंद मना तुम्ही, गोपाल मना मेह नारायणा. गोविंद गोपाल मेह नारायणा, गोविंद गोपाल मेह नारायणा. हरी मना तुम्ही, गोविंद मना तुम्ही, गोपाल मना मेह नारायणा. राम म्हणा राजा राम म्हणा, सीताराम म्हणा आत्माराम म्हणा. राम म्हणा राजा राम म्हणा, सीताराम म्हणा आत्माराम म्हणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा मेह नारायणा. गोविंद गोपाल मेह नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा मेह नारायणा. श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा, मेघ श्याम म्हणा, राधे श्याम म्हणा. श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा, मेघ श्याम म्हणा, परमेश म्हणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा मेह नारायणा. गोविंद गोपाल मेह नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा मेह नारायणा. ईश म्हणा जगदीश म्हणा, सर्वेश म्हणा, परमेश म्हणा. ईश म्हणा जगदीश म्हणा, सर्वेश म्हणा, परमेश म्हणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा मेह नारायणा. गोविंद गोपाल मेह नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा मेह नारायणा. बुद्ध म्हणा हुर्मझद म्हणा, खुदाबंद म्हणा, यजदान म्हणा. बुद्ध म्हणा हुर्मझद म्हणा, खुदाबंद म्हणा, यजदान म्हणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा मेह नारायणा. गोविंद गोपाल मेह नारायणा. गोविंद गोपाल मेह नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा मेह नारायणा. मेह नारायणा,
Meher Narayana, 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 Meher Narayana. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. Thank you very much, Rajat. एक आखिर सवाल पूछना है आपको. हाँ, बताइए बताइए. It is said कि music takes you closer to divinity. तो क्या आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ है? And if it's not too personal, can you share it with us, please? Through music. Oh, yeah, anything, huh? So, so there are a couple of things that's my belief system when it comes to music and divinity. Uh, Music is only second to silence when it comes to the ways through which one can reach the divine and work and attain the divine. First is silence, the second is music, and then other art forms and other ways come, bhakti and love. So my connection with music is, I mean, I know this for a fact that even as a kid, I used to be impressed by musicians when they used to sing, and they used to, I used to be transported to a different place. I still am, but I think what we don't know, and this I realized very late in life, was that most of the music that we hear is most often our skill as musician. In a sense that I would listen to my music teacher, and I would say it is such a heart-touching, soul-stirring music that I'm listening today. But he would switch between genres, and he would switch between styles so rapidly. एंड आई रियलाइज कि इतनी एकदम से कैसे कर लेते हैं. अभी तो हम राग भैरव सुन रहे थे. इट वाज, इनको ऐसा लग रहा था सुन के कि राग भैरव के अलावा इनको कुछ पता ही नहीं है लाइफ में. ही ओनली नोज हाउ टू सिंग राग भैरव. एंड देन सडनली नाउ ही इज स्विचिंग टू राग यमन, एंड वो यमन भी ऐसे गा रहे हैं जिससे लगता है कि यमन ही आता है और कुछ आता ही नहीं. So what time I realize it is, I think practice that takes you to that place where you are so skilled that even if you open your mouth, that connection happens. But then again, it is extreme practice, and that also happened with me, where people would come and say कि हमें बहुत connection महसूस हुआ. But most of the time it was कि, I'm singing because it's the skill that is talking. But there are moments, especially when I sing at Merazar, and most of the time I realized that pieces that are not musically perfect, pieces where I am not so musically sound, are the ones where I have gotten goosebumps more than the ones where I am sort of in tune, or whether, when I'm very much, the creative in me is satisfied. I think moments where the creative in me वो भाड़ में चला जाता है. But there are genuine moments where it's a simple line, it's not even so complex. इतना कुछ उसमें कुछ music है नहीं, मतलब it's a very simple line. कभी कभी वो एकदम से it gives me goosebumps, and I then sit over it, I think over it. मैं जब गा रहा हूँ तो उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा improvisation कर देता हूँ. So it is true that music is one of the short ways to reach divinity. I have reached a stage where I have attained a skill, but अभी वो वाला music करने में time perhaps. And honestly बताऊँ, I think if you ask any musician in this world, they are just bored of their music. And they like to listen to themselves, but they are just bored of themselves, क्योंकि वो अपने आप को ही सुनते रहते हैं पूरे टाइम. सो जैसे म्यूजिशियंस को पूछे आपका फेवरेट पास टाइम क्या है, जैसे कोई भी बोलेगा कि हमें म्यूजिक सुनना पसंद है. आई थिंक दुनिया में कोई भी ऐसा म्यूजिशियन नहीं है जो बोलेगा कि पास टाइम में मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, बिकॉज आई थिंक दे हेट इट टू देयर गट्स. कोई भी म्यूजिशियन के पास टाइम में म्यूजिक नहीं सुनता है. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग पूरे टाइम. सो दैट्स नॉट माय हॉबी. सो मैं जब अपना कुछ होता है तो मैं म्यूजिक नहीं सुनता हूँ. बट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई लिसन टू नुसरत बाबा's कव्वाली, when I listen to some Qawwali, when I listen to some bhajan,
जब मैं क्लासिकल आर्टिस्ट को सुनता हूँ वो मोमेंट्स आते हैं. इट डजंट हैव टू बी अ बाबा भजन, इट डजंट हैव टू बी बाबा म्यूजिक, इट जस्ट हैज टू बी म्यूजिक टू रीच दैट स्टेज वेयर दैट कनेक्शन हैपेंस. तो सबका बोलते हैं ना कि सबका सॉफ्टवेयर जो होता है भगवान अलग अलग तरीके से भेज के देता है. हो सकता है किसी को कोई एक कमर्शियल सॉन्ग सुन के बहुत फील आती है, हो सकता है किसी और को वो फील नहीं आती है. किसी को तुकाराम के भजन सुन के बहुत कनेक्शन महसूस होता है, दे गेट वेरी इमोशनल. किसी को कव्वाली सुन के वही इमोशन होता है, किसी को कोई अभंग सुन के होता है, किसी को पंडित भीमसेन जोशी अच्छे लगते हैं, किसी को प्रभा ताई यात्रे अच्छी लगती है. तो सबका अपना अलग अलग कनेक्शन है. बट इट इज ट्रू, म्यूजिक कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर तार जरूर छेड़ देता है. उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इट इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आई थिंक दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन अचीव, दैट इज म्यूजिक. एंड बिकॉज वो हाईएस्ट फॉर्म है एक्सप्रेशन का, आई थिंक हाईएस्ट फॉर्म इज लव, सॉरी, हाईएस्ट फॉर्म इज लव, देन कम्स म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दैट. तो बिकॉज वो उतना ऊपर है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर एक अलग ही तरीके से होता है. तो डिविनिटी कनेक्शन है एंड मेरा कुछ अलग तरीके से कनेक्शन है. आई माई कनेक्शन with Baba is not more so much with music, but in a very different way. Because the experiences that I've had, music involved है, but बहुत कम extent तक. It is through other experiences. So yeah. This reminds me of a incident that had happened to me. I'll just very brief about it. उन दिनों जब मैं एयर इंडिया में फ्लाई करता था तो एक समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां happened to join us from Bombay in first class. और उन I won't go into much detail. उनके बाजू में अपने दिलीप कुमार बैठे थे वगैरह वगैरह, एंड दे वर चैटिंग अवे अपनी उर्दू जबान में ये वो. एंड मेरे दिल में ये आया कि आई सीरियसली वांटेड टू आस्क बिस्मिल्लाह खां कि भाई आप इतने बड़े संगीतकार हैं तो कुछ डिविनिटी का कुछ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपको? नाउ दैट इज अ वेरी पर्सनल थिंग टू आस्क एंड येट आई कुड नॉट रेजिस्ट. तो वो सर्विस खत्म हो गई और वापस ये लोग गपशप में पड़े तो आई इंटरप्टेड. आई सेड सर मुझे आपसे कुछ पूछना है. तो बोला हाँ पूछो. मैंने पूछा कि मैंने सुना है कि संगीत के जरिए खुदा का दीदार होता है, क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है? तो ही स्टार्टेड लुकिंग एट मी एंड अरे बेटे ये कहां से निकाला तूने? टेलिंग दिलीप कुमार को जरा आप हटिए, इसको बैठने दीजिए, ये बहुत डीप सवाल पूछ लिया उन्होंने. देन ही वेंट ऑन टू टेल मी अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंस कि जब वो शुरुआत के दिनों में थे तो ही हैड दिस हैबिट ऑफ गोइंग इनटू अ खंडेर मंदिर, एक कोई टूटा फूटा कोई मंदिर में वो जाके बैठते थे और रोज अपना रियाज करते थे. तो एक दिन ही फेल्ट कि देयर इज समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. तो जब उन्होंने मुड़ के देखा तो माँ सरस्वती प्रकट हुई थी. He was dazed and she just blessed him. She said, I'm very happy with your efforts, this, that. And she told him कि तुम सारी दुनिया में ख्याति पाओगे. You will be famous around the world. पैसे ज्यादा नहीं कमाओगे, लेकिन ये जो कला है, Yes. you will take it all around the world. And that is exactly how it had happened. Bichara. So it just came to my mind and I thought I'd share it. सिमिलर स्टोरी बिस्मिल्लाह खां साहब की है. उनसे एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछा, टुवर्ड्स फैग एंड ऑफ हिज फैग इयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि उस्ताद साहब अभी तो आप भारत रत्न भी आपको मिल चुका है, आप इंडिया के प्रॉब्ली द बिगेस्ट म्यूजिशियन एवर हैं, तो अब संगीत आपको आ गया होगा. तो संगीत पूरी तरीके से आपको आ गया होगा. तो his reply was so good. I think that is something that I personally also believe in.
तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब हम जवान थे तब हमें वो अ, नजर नहीं थी। कैपेसिटी बहुत थी, बट वो नजर नहीं थी। तो हम वो नजर से नहीं देख पाते थे सुख को। हम वो कभी अचीव नहीं कर पाए जब हम यंग थे। बट कहते हैं अभी इतने साल बाद, इतना रियाज करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद, हमें कभी एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए कि वो नजर आती है, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन। वो बस एक ऐसा डिविनिटी, वो मतलब वो एक तो कहते हैं परफेक्ट सूर्य होता है। वो कभी कभी हम रियाज कर रहे थे, 6 6 घंटे रियाज कर रहे थे, जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हमको दिखेगी। बट अब हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको सस्टेन कर पाए। तो दिस वाज समथिंग, आई थिंक वो इंटरप्ले चलता रहता है। एंड आई थिंक ये बाबा से भी रिलेटेड इन अ वे, इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि आई थिंक व्हेन द एस्पिरेंट इज रेडी, तभी उनको बाबा का बोलते हैं ना कि he gets to have that grace. तो बाबा, all of us, we are sitting here, and few of us, we are sitting here, we are taking Baba's name. It is his wish, it is his grace that has descended on each one of us, that we are capable of taking his name, and we are in his company. There's so many stories where Baba says that when the aspirant is ready. There was this milkman story that Terach used to say. There was this perfect master had a disciple. Disciple was adamant कि मुझे God realization चाहिए, मैं इतने टाइम से आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो द मास्टर सेड यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। कहते नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो बोला ठीक है, तुम कल सुबह 5 बजे मेरे दरवाजे पे आ जाना, मैं उस समय उठता हूँ। तो द मोमेंट आई ओपन द डोर, आई विल गिव यू गॉड रियलाइजेशन। ठीक है। This fellow, he's so excited, he does not sleep all night, and this bugger just sleeps at 4:59. 5 बजे दूध वाला आता है and he knocks on the door, and the perfect master opens the door, and that man gets God realization. So it is when the aspirant is ready. Similarly, what happened with the Shams and with Rumi. Rumi was under Shams's, I would say, उनके tutelage में था, उनके अंडर थे। एंड शम्स एंड रूमी हमेशा चेस खेलते थे, या जो भी उस समय उनका गेम होता था। एंड रूमी वुड लूज एवरी डे, and he would get frustrated. And Shams, being a perfect master, would always say that, "Arey, today we lost, we lost." Rumi would say, "Yeah, I've lost." बहुत टाइम उन्होंने खेला वो गेम। फाइनली एक दिन वापस रूमी हार जाते हैं। तो रूमी बोलते हैं, अरे यार शे, आज मैं फिर हार गया। Then Shams says, "No, आज तुम जीत गए." And Rumi gets God realization at that moment. So I think when the aspirant is ready, when the student is ready, that's only when the teacher appears, and then जब वो और रेडी हो जाता है, तभी वो ऊपर वाले की ग्रेस होती है। सो ऑल ऑफ अस, हम बोल सकते हैं ना, हम लोग सब पक्के पकाए मुर्गे हैं इस समय। सो हम लोग बाबा के कंपनी में हैं, उनके सहवास में हैं, एंड वी आर टेकिंग हिज नेम एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट। सो आई होप this was worth your time today for all of you. I could share whatever I could, whatever little I know of Baba, whatever little I've experienced. And I once again thank all of you for your time, and for Baba or Bombay Center to arrange with Sam, Uncle, Farah, Janice, a back-end team. Thank you, Baba. And I hope we keep on meeting like this, and we share stories with Baba again and again. Avatar Meher Baba ki jai. रजत, मजा आ गया आज, बहुत मजा आ गया। एंड ये जो फॉर्मेलिटी है, थैंक यू का तो बीच में लाया, उसके पहले जो द कॉर्ड दैट वी हैड स्ट्रक, दैट वाज सो ब्यूटीफुल कि व्हेन एन एस्पिरेंट इज रेडी, वो अपने आप। तो बस हम बाबा से यही दुआ करते हैं, कुछ बोलना नहीं है आगे, चलो जय बाबा। Baba.
Rajat, we shall be doing prayer, Aarti, moments, and then we'll part. Okay? Thank you. Do you want to sing or कुछ prayer में कुछ करना है आपको? I can do the Aarti. You can proceed with the prayers. I can do the Aarti again. आरती के लिए तो मेरे पास एक चैंपियन है. अच्छा. ठीक है, I'll join in. I'll join. ठीक है, ओके. चलो, प्रेयर. अवतार मेहर बाबा की जय. हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है. तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है. तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है. तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो. तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो. तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है. तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे. तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो. तुम आकाश में हो और पाताल में हो. तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो. तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो. तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो. तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो. तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो. तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो. तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो. तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो. तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो. तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो. तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपूर्ण एक परमात्मा हो. तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो. तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो. तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो. तुम प्रभु और परमेश्वर हो. तुम परब्रह्मा हो और परात्परी परब्रह्मा भी हो. तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो. तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है. हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं. हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था. हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था. स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेषप्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं. विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं. और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं. हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके
हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलत नी कर खुद रत्न फरमा तू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू अयामुर शाद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बै तो मेहर बातू तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक बीने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो ओ ही तूफान तू हमोर है रब ने सालिक बख्श दे ज्ञान इज़्ज़त नू के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मोक तारेर फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साखिया पी दे पे मातू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा है निगे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जलत नी कर खुद रत्न फरमा तू छलागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। O glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart meher I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar.
who through compassion the three worlds maintains, destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world wheel that bears me on to death. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining guard. You are myself, I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days, till you, the ever-living perfect one, illumine my darkness with your shining sun. Tar Meher Baba ki jai. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. Thank you, everybody. Until we meet again next time, next Thursday, all I can say is take Baba with you. Today, I have a very happy announcement to make. Our champion here, Farah Kerawala, celebrates her birthday. So she's brought some biryani to be shared for all of us. Let us all get together and sing a very happy birthday for her. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Loudly. Happy birthday, dear Farah. Happy birthday to you. Avtar Meher Baba ki jai. Sam, I'm sending you my address. Biryani cannot be parcel, sir. Sorry. Mulund, please, Mulund. में चाहिए वाह पर रुस्तम निकला तो। Farah, I'm Very- your friend. Farah, I'm your friend. Farah, happy birthday. Thank you very much. Happy birthday, Farah. आज के प्रोग्राम का कमीशन प्लीज. Thank you Baba for everything. Jai Baba. Baba bless you. Thank Farah, you. Baba bless you. Bless you. Yes. Thank